Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. So my dear students, as you know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is Earth in the Solar System. Today I am going to deliver the lecture about solar eclipse and lunar eclipse. This lecture is full of activities and you will thoroughly enjoy this lecture. So stay tuned with me. और आपने तमाम एक्टिविटीज़ को ज़रूर परफॉर्म करना है ताकि आप लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स को अच्छी तरह से समझ सकें. So my dear students, before moving on towards the activity, let's quickly recap what we have done in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and then answer them. So my dear students, here's the question on your screen. Which factors are responsible for the formation of season? So there are two factors which are responsible for the formation of season. That is, number one is the tilting of the earth on its axis and the rotation or the movement of the earth around the sun, which is called the revolution. So revolution और tilting जो है इसकी वजह से seasons जो है वो बनते हैं. इसके अलावा how do seasons form? So the hemisphere which is tilted towards the sun that has the summer season, and which is tilted away from the sun that has the winter season. So इस तरीके से जो seasons हैं वो बनते हैं. Okay, my dear students, now is the time for an activity. So my dear students, आपने इस activity को ज़रूर follow करना है. मैं आपको खुद भी करके दिखाऊंगी. आप इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे और एक्टिविटी को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो मिलके करेंगे. So my dear students, conduct the following activity. Conduct the following activity to explain the eclipse. Place a light bulb on a stand. Provide a group of students styrofoam ball. Instruct students to stick their pencils in a styrofoam ball. The students will gather around the ball in a circle with stretched arms and the ball in hand. Darken the room and light off the lamp. The lamp in the sun, the styrofoam ball is the moon, and the students' heads are the earth. Okay, my dear students, तो तमाम बच्चे जो हैं सबसे पहले वो एक गोल दायरे में जो है वो खड़े हो जाएंगे. गोल दायरे में जो है बच्चे एक में खड़े हो जाएंगे और उसके बाद बच्चों ने क्या करना है, हाथ जो है वो अपने स्ट्रेच कर लेने हैं. जब बच्चे अपने हैंड स्ट्रेच कर लेंगे तो टीचर जो है उनको एक स्टायरोफोम बॉल देंगी जिसके अंदर मैंने जिसके अंदर टूथपिक जो है वो लगाया है. आप इसके अंदर पेंसिल भी लगा सकते हैं फ्रॉम द अदर साइड और इसको आपने हाथ में पकड़ना है. उसके बाद कीप ऑन पासिंग द बॉल. ठीक है, बच्चे एक दूसरे को जो सर्कल में खड़े हुए हैं बॉल जो है वो पास करते जाएंगे. जो बच्चों के सर हैं दोज आर द हेड. ठीक है, दैट इज द हेड. और इसका मतलब है बच्चे जो हैं वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अराउंड द सन जो उसका ऑर्बिट बनता है. और जो स्टायरोफोम बॉल है दैट इज द मून. नाउ आई विल स्विच ऑफ द लाइट्स क्योंकि मेरे पास यहाँ बच्चे नहीं हैं तो मेरा जो सर है दैट इज द अर्थ. ठीक है, और मैं इसको अपने सर के इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन दिलवाऊंगी इस तरीके से. ठीक है, और सामने से जो है वो लाइट जब लैंप की या टॉर्च की पड़ेगी तो आप देखेंगे कि जैसे ही किधर आकर जो है वो इक्लिप्स होगा या जो मेरा चेहरा है वो डार्क हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्विच ऑफ द लाइट्स एंड आई विल स्विच ऑन द लैंप ओनली. So I have switched off the lights. Now I will switch on my lamp. Okay. So my dear students, everybody can see the styrofoam ball. Everyone can see the styrofoam ball. Okay. So now this will circle around my head. So my head is the earth. और आपको सबको पता है सामने से जो है वो sun की light जो है वो पड़ रही है. And now this is the moon. This styrofoam ball is the moon and it is circling around the earth. And जैसे ही ये मेरे मुंह के आगे आता है तो it blocks the light of the और आपको शेडो भी मेरी नोज के पास समवेयर जो है वो नजर आता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसी को इक्लिप्स कहते हैं, जहां जो है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो है वो लाइट को ब्लॉक करती है और उसका जो शेडो है वो उसके पीछे वाली चीज पर पड़ता है. सो दैट इज कॉल्ड द इक्लिप्स. सो यहाँ भी सूरज की रोशनी जो है वो मून ब्लॉक कर रहा है. सो दिस इज सोलर इक्लिप्स. ठीक है, यानी कि हमें सूरज नजर नहीं आ रहा अब, तो दिस इज द सोलर इक्लिप्स. ठीक है, सो इस तरीके से ये जब हट जाएगा तो अगेन
ये डे टाइम पर फॉर्म होता है सोलर इक्लिप्स, जब दिन निकला हुआ होता है, क्योंकि चांद का उस वक्त कोई काम नहीं होता। तो क्या होता है कि ये एक वक्त ऐसा आता है, समटाइम्स ये बहुत कम होता है, डेली बेसिस पे या अक्सर औकात आपको ये नहीं देखने को मिलता। तो जैसे ही सूरज के आगे जो है बाज दफ़ा चांद आ जाता है, और जिसकी वजह से ब्लैक पोर्शन आपको मेरे मुंह पर भी नजर आ रहा होगा, है ना। तो इसी तरह होता है कि सूरज की जो रोशनी है वो ब्लॉक हो जाती है, शेडो अपेयर होता है, जिसकी वजह से इक्लिप्स हो जाता है डे टाइम में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो यू विल पॉज द वीडियो हेयर एंड यू विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी। अभी हमने सोलर इक्लिप्स जो है उसको फॉर्म किया है। मैं आपको लूनर इक्लिप्स भी बनाना सिखाऊंगी, वो हम फर्दर आगे जो एक्टिविटी करेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। Okay, my dear students, I hope everybody has performed this activity. Now let's get started with the chapter. So in today's lecture, the students will be able to illustrate and explain how solar and lunar eclipse occur. So आज के लेक्चर में बच्चे सोलर और लूनर इक्लिप्स किस तरीके से अकर होते हैं, बच्चे इस बारे में पढ़ेंगे। Okay, my dear students, so now is the time for pre-reading questions. So quickly tell me that what happened when moon comes between the earth and the sun. So जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान में आया था तो क्या हुआ था? शेडो अपेयर हो गया था ना, हमें जो है वो रोशनी लैंप की ठीक तरीके से नजर नहीं आ रही थी। सो दिस वाज द सोलर इक्लिप्स, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो ब्लॉक हो गई थी। Okay, my dear students, so now is the time for reading, for which you will open page number 118 in your Science 4 books, chapter number 9. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Solar and lunar eclipse. An eclipse is when light of the sun or the moon is obscured by either the sun, moon or earth by crossing their passage in its way during eclipses. A shadow covers the amount of the light. So my dear students, जब भी सूरज की या चांद की लाइट जो है वो obscure हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको डार्कनेस जो है वो ऑब्जर्व होती है। सो दैट डार्कनेस इज इक्लिप्स। इट कुड बी अ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब होगा? जब सूरज की रोशनी जो है वो ऑब्सक्योर हो जाएगी, वो रुक जाएगी, तो दैट विल बी द सोलर इक्लिप्स। जब चांद की रोशनी रुक जाएगी तो दैट विल बी द लूनर इक्लिप्स, ठीक है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट आपको करके दिखाऊंगी एक मॉडल के थ्रू, लेकिन अभी हम इसकी रीडिंग पहले कंप्लीट करते हैं। So let's quickly discuss about solar eclipse first. A solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth. जैसे कि अभी मैंने प्रैक्टिकल में करवाया, जब चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है और सूरज की रोशनी जो है वो रुक जाती है, then it is the solar eclipse. The moon blocks the sun rays from reaching the surface of the earth. As a result, we see darkness during the daytime. Solar eclipse occur very rarely. और ये जो eclipse है ये बहुत कम होता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता कि अक्सर औकात हो जाए। So the maximum number of solar eclipse that can take place in the same year is 5, but this is extremely rare. So ज्यादा से ज्यादा दफा एक साल में अगर इक्लिप्स हो तो वो 5 दफा हो सकता है, इससे ज्यादा दफा नहीं हो सकता, और ये भी बहुत रेयर है। इट इज वेरी रेयर। There are 2 regions of the eclipse. So regions जो हैं इक्लिप्स के वो 2 तरह के हैं। एक रीजन जो है वहां पर कंप्लीट डार्कनेस होती है, और एक रीजन है जो है वो पार्शली डार्क होता है। इन रीजन्स को स्पेसिफिकली हमने कुछ नेम्स दिए हैं, और वो क्या नेम्स है? दैट इज अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, ठीक है। सो द रीजन विच इज वेरी डार्क, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मून, यानी कि बिल्कुल जो है एट दैट इज बैक ऑफ द मून एंड दैट फेसेस कंप्लीट डार्कनेस, दैट इज कॉल्ड अम्ब्रा, ठीक है। यहां पे बिल्कुल लाइट जो है वो पहुंचेगी नहीं। एंड विच हैज पार्शियल डार्कनेस, सो दिस रीजन हैज पार्शियल डार्कनेस, ठीक है। यहां से चांद जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, या आधा जो है उसने कवर किया होता है। सो दिस ए रीजन वेयर देयर इज पार्शियल डार्कनेस इज कॉल्ड पेनम्ब्रा, ओके। They are umbra and penumbra. The umbra of the solar eclipse is the region of the earth where the shadow of the moon is completely dark. So this region will experience a complete solar eclipse because no sunlight will reach there. In the penumbra region, there is a partial solar eclipse, that is the moon shadow is partial, while the sun does not look very red or dim. So penumbra region में complete darkness नहीं होती, या सूरज जो है वो आपको बिल्कुल अंधेरा, dim या red नहीं नजर आता, partially dark होता है, semi darkness होती है, ठीक है। Whereas the umbra region faces complete darkness और maximum darkness, ठीक है।
All planets and satellites in the solar system are moving in an orbit around the sun. When those orbits line up with each other, they make a flat disk called the orbital plane. So तमाम जो ऑर्बिट, मैंने आपको ये वर्किंग मॉडल में भी दिखाया था कि तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं. अगर ये कभी लाइन अप हो जाएं इस तरीके से, यानी कि एक लाइन में आ जाएं, तो दिस इज कॉल्ड, ये एक फ्लैट डिस्क बना देते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन. So now is the time to learn about lunar eclipse. The lunar eclipse happens when the earth comes between the sun and the moon. Earth blocks the sun rays falling on the surface of the moon. Thus we cannot see the moon bright. It's the shadow of the earth falling on the surface of the moon, and this is called a lunar eclipse. So my dear students, now it is the opposite, क्योंकि मैंने आपको जब दिखाया था कि यहाँ पे अर्थ मेरा फेस था एंड द फ्रंट से सन रेज आ रही थी, तो यहाँ जो है वो मून ने सन रेज को ब्लॉक कर लिया. लेकिन जब रात को चांद निकला हुआ होता है और ये जो चांद है ये सन रेज को रिफ्लेक्ट करता है, तो अब क्या होता है कि ऐसा रीजन टाइम आता है कि अर्थ मूव करते करते सन के और मून के दरमियान में आ जाता है. नाउ यू कैन नॉट सी द मून, यानी कि अब चांद तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी एंड जो चांद है वो कंप्लीट डार्क नजर आएगा. सो यहाँ पे चांद की रोशनी जो है वो ऑब्सक्योर हो गई. सो दिस इज कॉल्ड द lunar eclipse. So जब सूरज की रोशनी obscure हुई थी तो that was solar eclipse. Now the light of the moon has been obscured, so this will be lunar eclipse. और अब दरमियान में कौन आ गया है? Who is in between moon and the sun? That is earth. In lunar eclipse, earth completely covers the moon in its shadow because it is bigger than the moon. अब बच्चों क्या होता है, क्योंकि चांद से अर्थ जो है वो 6 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, तो क्या होता है कि जब लूनर एक्लिप्स होता है तो चांद को अर्थ का जो शेडो है वो कंप्लीटली हाइड कर लेता है. इसकी वजह से क्या होता है कि चांद मुकम्मल छुप जाता है और आपको कंप्लीट डार्क नजर आता है ये, ठीक है. सो हियर यू कैन सी द लूनर एक्लिप्स. सो यहाँ जो है हियर यू कैन सी दैट द अर्थ इज इन बिटवीन द मून एंड द सन. And here you can see the complete darkness. यहाँ पे भी 2 regions होंगे. One will be umbra where there will be complete darkness, and the other will be the penumbra where there will be partial darkness. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मून जो है वो मूव कर रहा है, because it is moving, ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पेनम्ब्रा रीजन की तरफ जाते जाते यहाँ पर पार्शियल डार्कनेस हो जाएगी, लेकिन अम्ब्रा रीजन में देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस. सो हियर यू कैन सी सोलर एक्लिप्स. सो दिस विल बी अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा रीजन, और ये सोलर एक्लिप्स हो गया जब चांद जो है वो सूरज और जमीन के दरमियान में आ गया. ओके, एंड दिस इज लूनर एक्लिप्स, जहां पे आप देख सकते हैं कि चांद जो है उसके दरमियान में ज़मीन आ जाती है. अभी आप ये देखें, ये इसके पीछे जाएगा तो दिस विल बी पेनम्ब्रा रीजन एंड दीज 2 रीजन्स विल बी दिस विल बी अम्ब्रा रीजन राइट बिहाइंड द अर्थ, और ऊपर और नीचे वाले रीजन जो है वो पेनम्ब्रा होंगे वेयर देयर विल बी पार्शियल डार्कनेस. अब जो है एक मॉडल हम प्रिपेयर करेंगे जिससे मैं आपको शो करूंगी कि किस तरीके से हम सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को शो कर सकते हैं ऑन अ सेम मॉडल. Material that is required is chart, colored pencils, scissors, 3 thumb pins and compass. Procedure: cut the paper and make the model you see in the picture. Adjust the sun, earth and the moon so that they can move in different directions easily. So adjustment क्या होगी? sun, moon, earth, solar eclipse, sun, earth, moon, lunar eclipse. Make the chart for solar and lunar eclipse and display them in your classroom. So my dear students, सबसे पहले आपको compass चाहिए, आपको colored papers चाहिए, या आप वाइट पेपर पे भी बना सकते हैं, द वे यू वांट इट टू बी, ठीक है. तो सबसे पहले आपको शेप्स जो है वो कट आउट करनी है. सन की शेप मैंने कट आउट की और इसका जो है इसको मैंने सेंटर में यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है. मैं इसको थंब पेन से एडजस्ट कर दूंगी यहाँ. द नेक्स्ट इज मैंने इसी तरीके से अर्थ का भी एक छोटा सर्कल स्मॉलर देन द सन कट किया. मैंने ऑर्बिट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं. दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और इसी तरीके से साथ साथ जो है हम इनको ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि अर्थ का ऑर्बिट है ये. सो अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है, और ये मून का ऑर्बिट है.
और मून अपने ऑर्बिट में मूव करेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। दिस इज द मून। इसको यहाँ अब मैं थंब पिन कर दूंगी। ये देखें, दिस इज अ वर्किंग मॉडल। ठीक है, दिस इज अ वर्किंग मॉडल। आप इसमें रोटेशंस जो हैं वो देख सकते हैं। ये देखें, सो द मून कैन मूव इन इट्स ऑर्बिट। नजर आ रहा है आपको मूव करता हुआ ऑर्बिट में? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ऑर्बिट्स को नेम कर लेते हैं। आई एम अगेन यूजिंग थंब पिन्स टू डू द वर्क क्विकली। सो दिस इज द अर्थ्स ऑर्बिट। तो अर्थ के ऑर्बिट को हम यहाँ पिन कर देते हैं। ठीक है, सो मून का ऑर्बिट किधर है? दिस इज द मून्स ऑर्बिट। सो मून के ऑर्बिट को हम यहाँ पिन कर देते हैं। ओके, सो दीज टू थिंग्स आर डन नाउ। अब जो है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जो है वो हम कॉज करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सोलर इक्लिप्स बनाते हैं। सो क्या होता है कि डे टाइम है, अभी यहाँ पर फुल सनलाइट जो है वो रिसीव होती है, और क्या होता है कि समटाइम्स द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब क्या होगा, अर्थ को डार्कनेस जो है वो नजर आएगी, सूरज जो है वो डार्क नजर आएगा। दो रीजन यहां पर बनेंगे। दिस रीजन विल बी अम्ब्रा। ठीक है, इसको हम यहां पे मैं पिन करूंगी। दिस रीजन विल बी अम्ब्रा रीजन। बिल्कुल चांद के पीछे जो है वो अम्ब्रा रीजन होगा। वाई? वाई? क्योंकि यहां कंप्लीट डार्कनेस है। और कौन सा रीजन पेनम्ब्रा होगा? दो पेनम्ब्रा रीजन होंगे, हेयर एंड हेयर। सो दिस विल बी पेनम्ब्रा रीजन, जहां पर पार्शियल डार्कनेस होगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द मून विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, अब ये हो गया था सोलर इक्लिप्स। नाउ इट विल मूव ऑफ। ठीक है, ये पेनम्ब्रा रीजन की तरफ जो है वो मूव करना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है सोलर इक्लिप्स खत्म हो जाएगा। अब हम बनाते हैं लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, द अर्थ कम्स इन बिटवीन एट नाइट, द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून लाइक दिस। ठीक है, अब आप मुझे बताएं यहां पर पेनम्ब्रा रीजन और अम्ब्रा रीजन कौन से हैं? वेयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस? चांद को कहां कंप्लीट डार्कनेस फेस करनी पड़ेगी? सो दिस विल बी अम्ब्रा रीजन। ठीक है, ये अम्ब्रा रीजन होगा क्योंकि यहां पे कंप्लीट डार्कनेस होगी। एंड दीज टू रीजन्स विल बी, क्योंकि ये देखिए सनलाइट ऐसे जा रही है, किस तरीके से जा रही है? इस तरीके से जा रही है, तो यहां पर पार्शियल डार्कनेस होगी इन दो रीजन में। सो दीज विल बी पेनम्ब्रा रीजन्स एंड दिस विल बी अम्ब्रा रीजन। सो इस तरीके से अब जो है वो लूनर इक्लिप्स कॉज हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इनको लेबल करेंगे। दिस विल बी अम्ब्रा रीजन एंड दिस विल बी पेनम्ब्रा रीजन। सो यू कैन मेक सच मॉडल्स एंड यू कैन सेट देम इन योर क्लास, और इसी तरीके से आप पोस्टर के ऊपर भी इसको बनाकर और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है सोलर इक्लिप्स को और लूनर इक्लिप्स को। So my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me, what is solar eclipse? When the sun is completely dark, when the moon comes in between earth and the sun, that is the solar eclipse. And what is lunar eclipse? When the earth comes in between the sun and the moon, then that is lunar eclipse. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So my dear students, write down your name and the roll number. What is an eclipse? When the light of the moon or the sun is obscured, then that is you see darkness, you observe darkness, that is called the eclipse. What causes the solar eclipse? So when the moon is in between the earth and the sun and blocks the light of the sun, then there is solar eclipse. Describe umbra region. It is the region where there is complete darkness. Describe the penumbra region. It is the region where there is partial darkness. You can also draw it here. Okay. So what is lunar eclipse? Lunar eclipse is the eclipse when the earth comes in between the sun and the moon and blocks the light of the sun which is reaching to the moon. So that is, you observe the darkness of the moon, that is lunar eclipse. Draw solar eclipse. अब आपको solar eclipse draw करना है and also draw the lunar eclipse here. So इससे आपकी diagram की practice भी हो जाएगी. So quickly pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. So for homework, you will do question number 5 and 7 from section B, page number 121 in your notebooks, and you will also do question number 2 and 8 from section C, page number 121 in your notebooks. So my dear students, today we have discussed about the solar eclipse and the lunar eclipse.
So I hope you have understood about both the eclipses and how there are two regions that form because of the eclipse, umbra and penumbra. So my dear students, I hope you have enjoyed today's activity and the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah.